عمران خان کے صاحب رزاق داؤد صاحب بہت لمبی لمبی عرصے کی باتیں کرتے ہیں. آپ شارٹ ٹرم میں جلدی جلدی اس کو جو ہے کریں. وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا تھا, ڈو یو تھنک کہ اس کو کسی طریقے سے فل کیا گیا ہے؟ $100 کی وہ چیز لے رہا ہے, وہ اس کی انوائس پہ, اس کی رسید پہ $200 دکھاتا ہے. اوور انوائسنگ کا ملک کو نقصان ہے. ریبیٹ سسٹم کو اسٹڈی کیا جائے کہ کہاں پر آپ اس کو لوپ ہولز کو ختم کر سکتے ہیں, اور اس کی بہت زیادہ لازمی ہے کہ آپ ڈیجیٹائز کریں. اسد عمر کو سزا ملی ہے IMF سے مخالفت کرنے کی. پاکستان کا بجٹ اناؤنس ہونے والا ہے اور پاکستان کا جو چیلنج اکانومی پہ ہے وہ بہت بڑا ہے. IMF کا پیکج پاکستان آج کل میں ڈیسائیڈ کرنے والا ہے, لیکن جو ہمارے ایڈوائزر آن کامرس اینڈ ٹریڈ ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے چیلنجز ہیں کہ آنے والے بجٹ میں وہ کس طرح کا ریلیف ایکسپورٹرز کو دینے والے ہیں, امپورٹرز کے لیے کس طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہے تاکہ جو ٹریڈ بیلنس ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. ان تمام ایشوز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے ہماری شیڈو منسٹر فار ٹریڈ اینڈ کامرس لبنہ بیات ہمارے ساتھ ہیں. لبنہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یہ آنے والا بجٹ جو ہے یہ کتنا چیلنجنگ ہے ٹریڈ اور کامرس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, ایوری بڈی از واچنگ, کیونکہ ابھی آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ تھوڑا سا ابھی بہتری آنا شروع ہوئی ہے. ہم لوگ تو جو اکانومسٹ ہوتے ہیں تو ہم لوگ تو نمبرز کو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نمبرز پہ جو ہے دے آر لوکنگ quite positive. نمبرز کس طرح بہتر ہیں, لیکن عوام میں دیکھیں, عوام جنرل پبلک جو ہے اس میں مایوسی ہے, جو ٹریڈرز ہیں وہاں پہ مایوسی ہے, اور آپ کہتی ہیں کہ نمبرز بہتر ہیں. دیکھیں آپ کو میں تھوڑا سا یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے 2019 مارچ کی, اور جو کہ ابھی PTI کی گورنمنٹ نے بھی اور رزاق داؤد صاحب نے بھی اس کا بڑا کریڈٹ لیا ہے کہ انہوں نے جو ہماری ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو امبیلنس تھا, جو 405 ملین PKR سے جو ہے وہ 302 ملین 100 ملین کم ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹس کم ہوئی ہیں. امپورٹس کم ہوئی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ فورسڈ جو ہے نا, جو میجرز لیے تھے رزاق داؤد صاحب نے کہ جی آپ یہ اردو میں لیبل لگا لیں, یا کچھ چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ ٹیرفس لگا کے اور اس طرح کی کنڈیشنز لگا کے ملک میں روکا. لیکن یہ لانگ سسٹینیبل جو ہے وہ پالیسی نہیں ہے. نہیں, لیکن جو امپورٹس کم ہوئی, جو ضرورتیں ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں امپورٹ نہیں ہوئی اس کی ریپلیسمنٹ ہمیں لوکل انڈیجنس ریسورسز سے ملی. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ملک ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ آرگینک گروتھ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو آرگینک گروتھ کا مطلب ہے کہ آپ مزید جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہو, مزید پروڈکشن ہو, مزید چیزیں بنیں, اور مزید جو ہے وہ ہماری جو لوکل کنزمپشن ہو وہ ہمارے ہی پروڈیوسرز جو ہے وہ اس کو پورا کریں, اور ہماری جو ڈپینڈنس ہے امپورٹس پہ وہ کم. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو بہت سمپل سی بات ہے. لیکن لبنہ, اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ دس واز اے ویری گڈ انیشیٹو ان اے وے کہ جب آپ نے مختلف ٹیرف انٹروڈیوس کروائے, لوگوں کو ڈسکرج کیا امپورٹس کے لیے, آپ کی لوکل انڈسٹری ایٹ دا سیم ٹائم بہتر ہو سکتی تھی. لیکن یہاں پہ جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ تو بہت مسریبل ہے. لوگ نئی انڈسٹری نہیں لگا رہے, نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, تو وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا تھا, ڈو یو تھنک کہ اس کو کسی طریقے سے فل کیا گیا ہے؟ دیکھیے جی, یہاں پہ ہم بہت سارے گیپس کی بات کر رہے ہیں. میں یہاں پہ بہت لازمی کہ میں دو کانسیپٹس کی بات کروں ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس کے حوالے سے. ایک تو ہے اوور انوائسنگ اور ایک ہے انڈر انوائسنگ. ٹھیک ہے, تو اوور انوائسنگ جو ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں, تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. ہمارے اوور انوائسنگ ہے کہ اگر آپ $100 کی چیز ہے اس کو آپ جو ہے وہ $200 کی چیز بنا. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ بھی اس کا فائدہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کا یہ ہو رہا ہے, یہ بلکہ ملک کو نقصان ہے, اوور انوائسنگ کا ملک کو نقصان ہے. اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں, میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے اوور انوائس کرتے ہو, وہ امپورٹر کرتا ہے زیادہ تر, تو اوور وہ کیا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ جو $100 کی وہ چیز لے رہا ہے وہ اس کی انوائس پہ, اس کی رسید پہ $200 دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو $200 دکھانے سے اس کو دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو اس طریقے سے وہ بلیک منی کو وائٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ جو ہے وینڈر پیمنٹ کی آڑ میں جو یہاں کا کیش ہے, یہ جو اس کی جو ایک چیز ہے, یہ وہیکل ہوتی ہے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دوسرے اینڈ پہ بھی اس کی اپنی کمپنی موجود ہوتی ہے؟ نہیں, ناٹ نیسسریلی. آپ اس کو جو ہے بالکل جو آپ اوور انوائس کر رہے ہیں, آپ مڈل مین کے تھرو جا رہے ہیں. اوکے, یعنی مقصد تو پیسہ جو ہے وہ ایک اینٹی سے دوسری اینٹی باہر بھیجنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ اس کی اپنی بھی ہو سکتی ہے, اب وہ تھرڈ پارٹی بھی ہو سکتی ہے, جو سرپلس آپ پے کر رہے ہیں بھی ہو سکتا ہے. وہ سرپلس جو ہوتا ہے, کیونکہ جو آپ کا جو بلیک منی یہاں پہ گردش کر رہی ہوتی ہے, جس کو آپ کسی بھی طریقے سے بینکنگ چینل سے نہیں نکال سکتے, وہ آپ اوور انوائسنگ کر کے نکال سکتے ہیں. دوسری چیز ہے ریبیٹس. ہمارا ریبیٹ کا سسٹم بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ جو ہے امپورٹر کو جو ہے جب
जब वो एक्सपोर्ट करता है माल पूरा करके उसके बाद उसको रिबेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो उस रिबेट्स में भी वो जो है ना घपले करके ब्रो, यहाँ पे हमारा जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर बड़े स्मार्ट है लोग, बड़े ये जो है चैंपियन है हमारे जो है ना, वो क्या ओवर इनवॉइसिंग अंडर इनवॉइसिंग नहीं, लेकिन वो जो रिबेट है, रिबेट का क्लेम ये है, रिबेट इनको मिलती नहीं है, गवर्नमेंट लंबे अरसे से रिबेट नहीं देती। देखिए लेकिन फिर भी उनका क्लेम तो है ना, वो उसको फिर एफबीआर उसको उसके साथ वो जो है वो अपने टैक्सेस घटा लेते हैं, अपनी और चीजों में कर लेते हैं, तो जो ये हमारे जो और अंडर इनवॉइसिंग जो है, एब्सोल्युटली अंडर इनवॉइसिंग अगेन वही चीज है कि जो अगर $100 की चीज है उसको आप $5 की दिखा दें, और उस पे आपने जो कस्टमर सेल टैक्स देना है बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक हो गया। जहां पर वो उनको ओवर इनवॉइसिंग और एक्सपोर्ट्स में ओवर इनवॉइसिंग भी हो रही है, अंडर इनवॉइसिंग भी हो रही है। एक्सपोर्ट्स में क्योंकि आपको रिबेट्स मिलते हैं, कुछ चीजों में आपको रिबेट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट उन आपका पैसा वापस करती अच्छा, है। आपके जो एडवाइजर हैं कॉमर्स और ट्रेड पे, वो कितने विजिलेंट हैं जो आने वाले चैलेंजेस है उसके हवाले से, कि हमारी कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने आइडेंटिफाई की होगी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है हमारी टेक्सटाइल की, जो एग्रीकल्चर हमारी बेसिक इकोनॉमी की बैकबोन है, किन एरियाज को आने वाले बजट में उनको फोकस करना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए टू जनरेट बेटर रेवेन्यू फॉर द पाकिस्तान? मेरा तो ये ख्याल है जी कि एफबीआर को सीधा करें आप, अगर आपको अगर फॉरेन रिजल्ट चाहिए ना, तो ये ओवरनाइट कभी इकोनॉमी आपकी जो है टर्न अराउंड नहीं करती, अनलेस कि हमारा कल तेल निकल आए और गैस निकल आए, ऑल ऑफ अ सडन हम लोग बड़े अमीर हो गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा दो हफ्ते इंतजार करें, 2 हफ्ते हम इंतजार कर रहे हैं, बट पार्किंग दिस एट अ साइड एंड एट अ डिफरेंट नोट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वक्त जो एफबीआर के लूप होल्स है, जैसे मैंने ओवर इनवॉइसिंग अंडर इनवॉइसिंग का किया, रिबेट सिस्टम को स्टडी किया जाए कि कहाँ पर आप उसको लूप होल्स को खत्म कर सकते हैं, और इसके बहुत ज़्यादा लाजमी है कि आप डिजिटाइज करें। अच्छा, आपका डिजिटाइजेशन से क्या होगा, देखिए अलमास के आपका जो कस्टम का डिपार्टमेंट है वो आपके एफबीआर के डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, एफबीआर का डिपार्टमेंट है जो वो आपके एक्सपोर्ट के डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, आपका जो स्टेट बैंक है जिसके थ्रू आपकी पेमेंट्स वेंडर पेमेंट्स जा रही हैं, दे आर ऑल्सो इन द लूप। तो जब आपकी डिजिटाइजेशन एंड टू एंड हो जाती है तो उसमें फिर जो है वो फ्रॉड के चांसेस हमेशा कम हो जाते हैं। वेरी मुझे ये बताएं, अभी जो रिसेंट टॉप मैनेजमेंट है, लीडरशिप है एफबीआर की, उसकी चेंज है, चेयरमैन एफबीआर को रिमूव कर दिया गया, स्टेट बैंक के गवर्नर जो है उनको भी रिमूव कर दिया गया, और आईएमएफ के साथ चूंकि हम चीज़ें सेटल डाउन करने के लिए जा रहे हैं, रजा बाकर साहब का नाम लिया जा रहा है कि आईएमएफ जो है वो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, बट ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट गवर्नर स्टेट बैंक। जी, उनका नाम सामने आया है और बहुत सारे जो है वो अखबारात में जो है उनका नाम आया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नाम नहीं, आईएमएफ ही आ गया है ना, अगर वो अपना बंदा एज ए गवर्नर, सो इट्स मीन कि वी आर स्ट्रिक्टली गोइंग टू फॉलो व्हाट इज गोइंग टू बी डिक्टेटेड टू अस थ्रू आईएमएफ। देखिए, वी हैव नो चॉइस, Okay. Beggars can't be choosers. Right, so basically what's happening ठीक है, वो जो कशकोल के नारे थे वो नारे रह गए, but at the same time what I would say कि इस वक्त जो असद उमर साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था आईएमएफ पहले ना जाकर, और ये सोच के कि हमारी कंडीशंस जो हैं वो लैक्स हो जाएंगी या हमें अब बहुत आसानी से होगा, उन्होंने बड़े अच्छे जो है उनका जो एक दिली ख्वाहिश थी और उनकी एक सोच थी, वो एक बड़ी ऑनेस्ट सोच थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, और वो ऐसा हुआ कि जो मार्केट का जो अपना कॉन्फिडेंस था वो भी इरोड हो गया। मुझे लगता ये है कि असद उमर को सजा मिली है आईएमएफ से मुखालफत करने की, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना मुश्किल सा काम है। देखिए जी, बात ये है कि हम लोग इस वक्त हमारी हर चीज़ ही जो है वो गिरवी है, हमारे एयरपोर्ट्स गिरवी हैं। अगर आप देखिए ना बैक एंड पर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, हमने आईएमएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए, जब आप कोई कोलैटरल्स पे जाते हैं अभी तो आपको पता चलता है यानी हमने क्या क्या चीज़ अपनी उनके पास गिरवी रख के और ये कर्जे लेते रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का एक ह्यूज सर्कुलर डेट और एक्सटर्नल डेट है। तो अभी आप आईएमएफ को ही देख ले, तो 27 बिलियन तो हमने अगले 2 साल में देने हैं, और अभी हम फिर उनसे जो है 6 बिलियन का जो है वो रिलीफ पैकेज ले रहे हैं। और उसमें 6 बिलियन में भी हमारे 6-6.5 बिलियन में भी आधे से ज्यादा पैसे उनका आईएमएफ को हम वापस कर रहे हैं। अच्छा लुबना, मैं वो प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। हमारे कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्टर जो हैं, जिसका फर्नीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेदर प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पे फर्नीचर बनाने वाले बड़े ज़बरदस्त हैं और इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गुंजाइश है। लेदर प्रोडक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किया कि वो इट्स अ डाइंग इंडस्ट्री, उसको फोकस करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। डू यू थिंक इसको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है इन एरियाज़ को? देखिए, मुझे बताओ, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगी, रज़ाक दाद साहब ने कभी एक दिन भी गांव में गुजारा है? नहीं गुजारा होगा। देखिए, नहीं गुजारा होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब डैम और कंस्ट्रक्शन और बड़े प्रोजेक्ट पे हैं, एंड
डोंट गेट मी रॉन्ग, उनकी जो एक्सपर्टीज है एज एन मैनेजमेंट पर्सन, एज अ स्टॉलवर्थ, एज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दैट्स देयर. बट एट द सेम टाइम जब आप पॉलिसीज बनाते हैं, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तो जब ये जो एक छापने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपको एग्रीकल्चर पे बात कर रहे होते हैं पूरे नेट से निकाल के, और जो है कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के पेपर्स निकाल के आके जो है, और आपके जो है फाइनेंस मिनिस्टर बैठे होते हैं वहाँ पे, आपके कॉमर्स मिनिस्टर बैठे होते हैं, 5-6 जो है आपके वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, दे मेक पॉलिसीज फॉर गंदम, they make policies for cotton, नहीं, और उनकी prices, right. तो it's very important कि it is now, अब अगर चेंज आ ही रही है और इमरान खान साहब रिवैम्प करने की कोशिश कर भी रहे हैं और रज़ाक दाऊद साहब अपनी कैपेसिटी में ये चीज़ें करने की कोशिश कर भी रहे हैं, आई थिंक कि उनको जो है मार्केट एक्सपर्ट्स को लाना लाजमी है. अब आलू, किसान आलू जो है वो उगा रहा है, 2 रुपए किलो मिलता है आलू, ठीक है. अब वो 2 रुपए किलो जब वो आलू या 5 रुपए किलो आलू बेचेगा, वो घर पे क्या लेके जा रहा है? बिल्कुल ठीक है. तो उसके बाद वो फिर अभी इसके आलूओं से जान उसकी छुट्टी नहीं होगी, तो वो इसके बाद वो गंदम में फंस जाएगा, गंदम के लिए रोएगा. मैं थोड़ा सा आपसे एक और चीज, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, गवर्नमेंट अपनी मर्जी पे उनको जो करेगी आगे, फिर जो है वो फिर आपके पास कॉटन माफिया आ जाएगा. एक चीज आपसे और भी समझना चाह रहा हूं कि रज़ाक दाऊद जैसे बड़े एक्सपर्ट लोग जो हैं, जो मैनेजमेंट के बड़े हैं, वो बैठे हुए हैं. हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हम बना लेते हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी अचीव कर लेते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक भी लेके चले जाते हैं, लेकिन जो मार्केटिंग के गिमिक्स हैं वो हमें नहीं आते, जो ट्रिक्स इंटरनेशनल मार्केट में एस्टैब्लिश. उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं कि यहाँ पे फौजी मीट का एक प्लांट लगा हुआ है विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप हैरान होंगी कि जहाँ पे हमारे छोटे छोटे शायद जो स्लॉटर हाउस हैं और जो इंडिया के बहुत सारे, दे आर डूइंग अ ह्यूज बिजनेस इन मिडल ईस्ट एंड एवरीवेयर, ये प्लांट गुज़श्ता 10 साल से नुकसान पे जा रहा है डिस्पाइट बीइंग द स्टेट ऑफ आर्ट इन द वर्ल्ड. रीजन बीइंग वी डू नॉट हैव मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग. आप देखिए बात यही है कि हमारे इदारे एक दूसरे के साथ नहीं बात कर रहे, और जिन इदारों के जब आपके पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो फिर यही काम होता है. आपको ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त चैलेंज गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को और बाकी सबको ये है, मैच द जॉब टू द कैपेबिलिटी. राइट. तो उनको जो है वो बंदे नहीं, या तो बंदे मिल रहे हैं तो उनको नजर नहीं आ रहे, या फिर ये है कि वो जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड जो रूल्स है, जो पहले भी जो है वो हमारे मुशर्रफ साहब के दौर में जो है वो आके जो है वो ट्राई कर चुके हैं, वही पॉलिसीज दोबारा वो रीवैम्प कर रहे हैं, रीपैकेज करके. इंटरनेशनल मार्केट को समझने वाले लोगों को यहाँ पे बुला के जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनको एक्सपोर्ट सिखाने की जरूरत है. बात ये नहीं है, आप ग्रास रूट पर जाएं, आप अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को उसको बेहतर करें. आप ऐसा कीजिए कि आप उनको पैकेजेस सिखाएं, आप उनको ब्रांडिंग सिखाएं. अगर हमारी जो है एग्जैक्टली अगर हमारी जो है खजूर है, वो आप अगर देखेंगे जो बलूचिस्तान में जो खजूर के जो जितने भी हैं ओएसिस हैं, और अगर आप वो खजूर खा लें, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल, बट वी आर अनएबल टू डेवलप द ब्रांड एक्चुअली, और ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो रेडियो पे बिकती है जो है ना, और वो हमारे यहीं पे खप जाती है, उनको कोई आगे पता नहीं चलता. वन लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि रज़ाक दाऊद साहब बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, एंड यू बीइंग अ शैडो मिनिस्टर, अबाउट जापान एंड कोरिया मार्केट. अभी रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां से वापस आए हैं, उन्होंने कहा कि जी मुझे फॉरेन मिनिस्टर ने ये पैगाम दिया है कि बहुत बड़ी मंडियां वहां पे खुल गई. जापान और कोरिया में किस तरह का बिजनेस हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से? देखिए, सबसे बड़ी बात है आपके पास, अगर आपको शॉर्ट टर्म में, वही बात कर रही हूँ हमेशा हर प्रोग्राम में कि इमरान खान के साहब, रज़ाक दाऊद साहब बहुत लंबी अरसे की बातें करते हैं, आप शॉर्ट टर्म में जल्दी इसको जो है करें. इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर इज समथिंग दैट वी कैन एक्चुअली टर्न अराउंड वेरी क्विकली. वेरी राइट. ठीक है ना, विद इन मंथ्स आपकी क्रॉप तैयार हो जाती है और वो कट जाती है और वो उसको कर सकते हैं. तो आप उन मंडियों में भी, उनका भी एक स्टैंडर्ड्स है, वो स्टैंडर्ड्स, आप उन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं कि आपके जो है वो अगर ऑर्गेनिक है तो वो उनके इंस्पेक्टर्स आते हैं और वो देखते हैं उनकी जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उन मंडियों में आपकी जो है वो फूड आइटम्स के, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं. तो अगर तो हम उसको जो है अच्छी तरह से स्टडी करके आते हैं और वहाँ पे हम अपना जो है एक गैप एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास क्या कमी है और उनको क्या ज़रूरत है, और उसके हिसाब से हम जो है आइडेंटिफाई करके प्रॉपर प्लानिंग करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर, हमारी जो एग्रीकल्चर वजारत है वो हमारी जो है वो जो ट्रेड डेस्क बने हुए हैं बाहर, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर और उनको देखें कि किस मार्केट में किस कमोडिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, वो कमोडिटी जो कि उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे.
ٹھیک ہے جیسے میں نے آلو کی بات کی, وہ تو اگر ایک ایسی جگہ پہ بھیجیں گے جہاں پر آلریڈی کمپٹیشن ہے اور آپ کے پاس وہ قیمت نہیں ملے گی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کوئی نہیں. تھینک یو سو مچ لبنہ. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ ہمارے آنے والے بجٹ میں ہمارے پاس چیلنجز کیا ہیں, ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے, ہم نے اوور انوائسنگ اور انڈر انوائسنگ کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, اور یہ جو کرنٹ لاٹ آف لیڈرشپ ان ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک جو آنے والی ہے, لیٹس سی دس ٹیم ٹوگیدر ود دی اکانومی منسٹر اینڈ ایڈوائزر آن ٹریڈ اینڈ کامرس, ان کے ساتھ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.